explain one cross, so automatically all terminology will be clear. Okay, so now just a monohybrid or dihybrid cross, I'm going to explain you two crosses, and by that cross you can understand all the terminology. Yesterday already I tried, but I will explain this by dihybrid cross also. See how dihybrid and monohybrid cross takes place. Suppose we select a one variety of the female parent. Okay, this is called as a female parent, and this is called as a male parent. So female parent is represented by this symbol circle and plus, and male parent is represented by arrow. Okay, now this female parent have one character. Suppose I am selecting the seed character. From whom? From the pea plant. So seed, which character? Seed shape character I have selected. So what is the shape of the seed? That is called as a round. So this round is the external character of the organism. So this female and male, this symbol is represent as what? Parent. What they are called as a parent. The organism who are used to select the first cross, that organisms we can say they are called as a parent. Now here the seed shape which I have written here, that is round, which is called as a phenotype. What it is called as a phenotype. This phenotype is called as the external appearance of organism. So in female plant, the seed shape which I selected, that is round. And now here in the male plant, the seed shape which is selected, that is called as a wrinkled. What it is called as wrinkled. Now, though it show external character, से कभी कभी हमको है ना, ऊपर से हम किसी पे गुस्सा नहीं होते, लेकिन हम अंदर से किसी पे गुस्सा होते हैं, अंदर से बहुत गुस्सा रखते हैं. कभी कभी उल्टा होता है, जैसे मम्मी आपको बहुत प्यार करती है, लेकिन वो ऊपर ऊपर इतना स्ट्रॉन्ग गुस्सा दिखाती है ताकि आप अच्छा काम कर पाए. तो ऊपर से तो दिख रहा है कि मम्मा बहुत गुस्से में है, लेकिन अंदर से वो आपको भूखा नहीं रखेगी, वो आपके लिए बहुत प्यार करेगी. तो सेम लाइक दैट, तो एक्सटर्नल अपीयरेंस को हमने क्या कहा है? राउंड. बट इंटरनली दैट राउंड शेप is represented by one chromosome. वो किससे रिप्रेजेंट होता है? क्रोमोसोम से. एंड दैट क्रोमोसोम हैव अ पेयर ऑफ जीन. उसे पेयर ऑफ क्या कहेंगे? जीन है. So that is represented by capital R, capital R. Why here capital R, capital R? Because that character is called as a dominant. So wherever this round character will move from generation to generation, that character always try to appear in generation to generation. So that character show its dominancy. So that is called as a dominant character. And wherever this character is present, that always suppresses. So it is represented by small r. इससे हमने क्या represent किया? Small r. So that character is called as a recessive character. उसे हमने क्या नाम दिया है? Recessive character. So here the recessive character is represented by small r, small r. So what this capital R, small r, this is called as a genotype. उसे क्या नाम दिया? Genotype. तो first terminology हुई phenotype की. What that phenotype is called as the external appearance of the organism, and genotype is called as a, what genotype is called as a genetic constitution of the organism is called as a genotype. Now it is represented by similar gene. It is represented by similar letter. So that is called as a homozygous. What it is called as a homozygous. If it is represented by two different letters, so two different genes, not identical, not similar, then they are called as a heterozygous. But now here what we selected, that is homozygous. So here these parents which I am selecting, that parents are selected by considering only one pair of contrasting character. What that one pair of contrasting character? Round and wrinkle. So here I had selected only one pair of contrasting character. Suppose along with that, if I select the round but yellow shape, round shape but yellow color. So here how many characters I have selected? Two characters. And contrast to that, yellow को यहाँ पे कौन सा color लेंगे? Green color. This is a character of क्या हुआ? Seed का shape है
वैसे ही मैंने सीड का क्या लिया, यहाँ पे कलर लिया. So here two characters I have selected. Now this is what this is called as a dihybrid, means two contrasting characters लिए हैं. But हम ले क्या रहे हैं, एक ही को ले रहे हैं. तो पहले हम एक ही character पे concentrate करेंगे, that is round shape. Now this produces what? By the process, that process is called as a meiosis. This genotype or this parent produces, that is called as a gamete. What they produce? Gamete, and that is represented by half number of chromosome R and R, small r. So what is meaning of monohybrid cross? Cross between two pure parents. Parents कैसे लिए है? Pure. That is represented by small capital R, small r, small r. So cross between two pure parents by considering only one pair of contrasting character. कितना pair of contrasting character लिया है? One. So that is called as a monohybrid cross. And cross between two pure parents by considering two pair of contrasting character. अगर मैंने दो pair of contrasting character लिए हैं, तो यहाँ पे येलो का भी क्या आएगा? कैपिटल Y, फिर उसके बाद ग्रीन का क्या आएगा? स्मॉल y. तो इस तरह से अगर मैंने टू पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स लिए इन बिटवीन टू पेरेंट्स, देन दैट क्रॉस इज कॉल्ड एज ए डायहाइब्रिड क्रॉस. ये दोनों में क्रॉस चल रहा है, मतलब दोनों के गैमेट्स, मतलब मैरिज है इनडायरेक्टली. सो नाउ कैपिटल R fuse with small r and it produces what that produces, that is called as a offspring. अब इसे मैंने क्या नाम दिया? ऑफस्प्रिंग. एक सिंगल ऑफस्प्रिंग है. See now this single offspring showing capital and small r, this is called as a genotype. इसे क्या नाम देंगे? जीनोटाइप. But it is not similar, it is not homozygous. ये कैसा है? हेटेरोजाइगस. ये कैसा है? हेटेरोजाइगस. It is not homozygous. That means I can say this is called as a hybrid. उसे क्या नाम देंगे? Hybrid. Why it is called as a hybrid? और ये जनरेशन कौन सी होंगी? पेरेंट्स से आई है ना, फर्स्ट जनरेशन. So this is called as a F1 generation. 1 means what? First, and F means filial. Filial means parents से जो offspring आया, that is called as a filial. So this is called as a first generation or first filial. Now suppose this first filial is cross with what? Suppose ये इसी को मैंने लिया कैपिटल R स्मॉल r. अब इसका जीनोटाइप है ना ये, दिस इज कॉल्ड एज ए जीनोटाइप. व्हाट विल बी द फिनोटाइप? ये क्या है इसका? जीनोटाइप. दिस वैरायटी इज जीनोटाइप. व्हाट विल बी द फिनोटाइप ऑफ दिस? दिस इज फिनोटाइप इज कॉल्ड एज ए राउंड. ये दिस इज कॉल्ड एज ए फिनोटाइप. फिनोटाइप को क्या नाम दिया? राउंड. नाउ कंसिडर दिस एज अ पेरेंट. इसे मैंने फीमेल पेरेंट करके लिया. नाउ दिस इज कॉल्ड एज ए फीमेल पेरेंट. नाउ ये जो फीमेल पेरेंट है, इसके बहुत सारे सीड रहेंगे ना. नाउ दिस इज क्रॉस विथ एनी वन ऑफ द अबव पेरेंट. या तो राउंड वैरायटी से क्रॉस करूंगी या तो रिंकल्ड से. तो मैं पहले राउंड वैरायटी से क्रॉस करती हूँ. कैपिटल R. ये पेरेंट है ना, विच पेरेंट? फीमेल है ना, तो लेकिन तो भी यहाँ पे सीड है, तो सपोज मेल पेरेंट लेते हैं. या तो कैपिटल R स्मॉल r, दिस इज जीनोटाइप ओनली. यहाँ पे ऊपर फिर से क्या आएगा बताओ? राउंड. क्रॉस विथ किसके साथ होगा? विथ स्मॉल r. दिस इज ऑल्सो जीनोटाइप. व्हाट इज द phenotype of this genotype? This is called as a wrinkled. Now this cross is called as a back cross. इस क्रॉस को नाम क्या दिया? back. Why this is called as a back cross? Because here F1 hybrid variety, what this variety? F1 hybrid variety is cross with whom? Parent. कौन से पेरेंट से क्रॉस किया है मैंने? डोमिनेंट. कौन से पेरेंट से क्रॉस किया? डोमिनेंट. तो मैं इसे बोल सकती हूँ डोमिनेंट बैक क्रॉस. इसे क्या नाम देंगे? डोमिनेंट बैक क्रॉस. नाउ हियर वैसे ही हुआ. F1 हाइब्रिड वैरायटी क्रॉस विथ हुम? विथ रिसेसिव पेरेंट. ये किससे क्रॉस हुआ है? रिसेसिव पेरेंट. तो ये पेरेंट रिसेसिव क्यों है? क्योंकि इसके स्मॉल r जीन सप्रेस होने वाले हैं.
So now this cross is also called as a back cross. इसे भी क्या नाम दिया है? Back. But now this back cross is called as a recessive back cross. इसको recessive back cross is also called as test cross. इसे क्या नाम दिया जाता है? Test cross. Why this recessive back cross is called as a test cross? हम लोग ही देखते हैं. देखो, अब ये क्या प्रोड्यूस करेगा? गैमेट. तो गैमेट में से क्या आएगा? वन इज कॉल्ड एज ए कैपिटल आर, अदर वन इज कॉल्ड एज ए स्मॉल आर. नाउ दिस प्रोड्यूसेस व्हाट? गैमेट. दिस इज ओनली कैपिटल आर. सिमिलर ही है ना, तो 2 टाइम्स लिखने की जरूरत नहीं. अब फ्यूजन होगा, सपोज ये ऐसे ही ड्रॉ करके एक्सप्लेन करती हूँ. फ्यूजन होगा गैमेट का, तो इट प्रोड्यूसेस कैपिटल आर, कैपिटल आर. मीन्स व्हाट दैट स्पीसीज इज. ये स्पीसीज कैसे दिखेगी? ट्राई मी द आंसर बाय चैट ओनली. कोशिश करो. व्हाट इज द phenotype ऑफ दिस स्पीसीज? व्हाट इज द अपीयरेंस ऑफ दिस स्पीसीज? इफ एनी वन ऑफ यू कुछ कोशिश करेंगे तो ये एक्सटर्नली कैसे दिखेगी? पैरेंट जैसे ही दिखेगी ना. हाँ, सो दैट अपीयरेंस इज वेरी गुड. राउंड. टॉल हमने लिया नहीं है, हम कैरेक्टर किसका ले रहे हैं? राउंड का. इसलिए आंसर क्या आएगा इसका? राउंड. सपोज नाउ दिस गैमेट is produced fused with capital R and small r. Now what is the phenotype of this? इसका phenotype क्या होगा? Yes, by chat. How these plants will be look? हाँ, they are also round. Very good. Okay. तो ये भी variety कैसे आ गई? Round variety. So what happened? हमें दोनों भी plants कैसे मिल रहे हैं? Round. और पेरेंट को भी हमने कैसे सिलेक्ट किया था? राउंड. ये भी क्या है? राउंड. इससे हमारा रिसेसिव ट्रेट अपीयर हो रहा है क्या? हमारा ये जो स्मॉल ट्रेट है वो दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है ना. तो हमें, हाँ, ये तो हमें टेस्टिंग करने के लिए इजी नहीं जा रहा है. सब राउंड 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 ही दिख रहे हैं. तो वेयर आवर स्मॉल आर गोज, दैट इज नॉट एबल टू आइडेंटिफाई. वो हमें मिल नहीं रहा है. क्वेश्चन मार्क आ रहा है. बिकॉज वेयर देन दिस स्मॉल आर गोज. ये F1 जनरेशन में अगर होता, ये स्मॉल यहाँ है व्रिंकल फॉर्म में, तो वो यहाँ कहीं दिखना चाहिए. तो यहाँ अपीयर नहीं हो रहा है. सो नेक्स्ट क्रॉस देखो, यहाँ पे इसके गैमेट्स क्या आएंगे? कैन एनी वन ऑफ यू गिव मी द चैट? व्हाट आर द गैमेट्स ऑफ दिस स्पीसीज? ये जो राउंड है जिसका कैपिटल आर स्मॉल आर लिखा है, हमने इसका पहले भी लिया था. व्हाट आर दैट? What are the gametes of this round species? Yes. I can't understand. What are the gametes? One that is R capital E. This is F1 generation I have written. One this is capital R and other one is small r. So these are the gametes of what species? Round species. And now here in wrinkle, what are the gametes? हाँ, that is small r only. इसका gametes क्या आएगा? Small r. अगर इनका फ्यूजन हुआ तो give me the answer now. कैपिटल आर. हाँ, क्या आंसर आएगा इसका? ये दोनों फ्यूज होने के बाद one will be capital R, other will be the small r. Good. And now another species is, next species is, yes, small r, small r. Good. आपको समझ में आ रहा है? small r. Very nice. So now this small r represent what character? Any one of you? Small r means what? What is the phenotype of this small r and small r? Very nice. All of you giving good answer. Huh? Say this is called as a wrinkle. मुझे बहुत appreciate हो रहा है. मुझे लग ही नहीं रहा है कि मैं online lecture ले रही हूँ. Thank you to all of you. So what this character? Wrinkle दिख रहा है. और यहाँ पे क्या आ रहा है? What this is called as a round. So in this generation what happened? I get the wrinkle species. मुझे कौन सा species मिला? Yes, very good. कौन सा species मिला? Wrinkle. तो ये मुझे मिल रहा है. So this cross is known as a test cross to identify the previous parent. हमें previous parent मालूम हो रहा है. So that is because of this. If the cross between F1, तो test cross का definition क्या आएगा? The cross between F1 progeny with homozygous, ये homozygous है ना,
Why this is called as a homozygous? बताओ मुझे, मैंने इसे homozygous word क्यों यूज किया है? क्यों? Why this species is called as a homozygous? This is called as a heterozygous. Just try me. Why? हाँ, because they have same RR. It's okay, but RR means what? RR का भी मीनिंग आना चाहिए ना. कुछ सोच के आंसर थोड़ा सा कोशिश करो. Wrinkle से जिससे से wrinkle is a phenotypic character. RR is a genotypic character. But homozygous का मीनिंग क्या होता है? Similar gene are present. Identical alleles are present. That is the right answer. So similar gene or identical alleles means what? That is called as a homozygous. तो हम उसे क्या कहेंगे? Homozygous. बाकी लोगों ने जो आंसर दिया वो गलत नहीं है, लेकिन वो एग्जाम्पल आया. हमें होमोजाइगस टर्मिनोलॉजी को डिफाइन करना है. तो ये जो है wrinkle variety, that wrinkle variety is called as a homozygous variety, and this variety is called as a, इस variety को क्या नाम दिया? F1 hybrid variety. Now this F1 hybrid variety is cross with किसके साथ हुई? With recessive parent. Then the cross is done. That cross is called as a test cross. What this cross is called as a test cross, और it is called as a back recessive cross. इसे क्या नाम देंगे? back recessive cross. तो फास्टली इसे क्रॉस से मैं अभी टर्मिनोलॉजी लेती हूँ. टेक्स्ट बुक आपके पास होगा तो वेरी वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो नोट्स देखो स्क्रीन पे. कल हमने कौन सा देखा था? ये रिसेसिव का डेफिनेशन लिया था. सिंपल फॉर्म में याद रखेंगे. द कैरेक्टर विच इज नॉट एक्सप्रेस इन F1 जनरेशन, the allele which is not representing its character in F1 generation is called as a recessive. Phenotype का मीनिंग क्या आएगा? External appearance of an organism or individual is called as a phenotype. What is meaning of genotype? Genetic constitution or genetic makeup of an organism is called as a genotype. अभी homozygous means what? Having the identical alleles. What they have? Identical allele. So tall represented by किससे किया? कैपिटल T, कैपिटल T. Dwarf represented by किससे हुआ? स्मॉल t, स्मॉल t. Now next one heterozygous. एक बार ये आपको समझ में आ रहा है identical alleles, तो ऑटोमेटिकली वो आपको दूसरा वर्ड याद ही रहेगा, contrasting. तो जिसको contrasting वर्ड याद नहीं रह रहा है ना, वो कैसे याद रखेगा? contrast. identical मतलब similar, आपको समझ में आया. यहाँ पे dissimilar लिखेंगे तो भी चलेगा. नॉट नेसेसरी कि ये बायोलॉजिकल कॉन्ट्रास्टिंग वर्ड ही याद रखना है. लेकिन इमेजिनरी ना, कभी कभी इतना एबनॉर्मल ब्रेन को इमेजिनरी थिंकिंग देने का कि ब्रेन सोच ही नहीं सकता. फॉर एग्जांपल मैं बोलती हूँ, सपोज क्या बोलेंगे, हाँ जीन्स पैंट डाला है, सपोज आप लोगों ने जीन्स पैंट और टॉप डाला है, गर्ल्स के बारे में बात कर रही हूँ, और फिर उसके ऊपर सर के ऊपर कुछ और एबनॉर्मल करके रखा है, क्या बोलेंगे उसके? दुपट्टा लिया है, सपोज जीन्स डाला है और आपने दुपट्टा लिया है, तो वो कैसे लगेगा? एबनॉर्मल लगेगा ना. तो आप उसे बोलेंगे क्या कॉन्ट्रास्ट कॉम्बिनेशन है, इसे मालूम भी नहीं. ओके, तो इस तरह से एकदम एबनॉर्मल कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड एज ए कॉन्ट्रास्ट. कॉन्ट्रास्ट दैट इज हेटेरोजाइगस. देन इंडिविजुअल पोसेसिंग कॉन्ट्रास्टिंग एलील अपोजिट टू ईच अदर, एकदम अपोजिट रहेंगे, and that species is called as actually hybrid. उसे ही क्या नाम देंगे बताओ? हाइब्रिड, which is represented by two contrast character. तो यहाँ पे टेक्स्ट बुक में कौन सा एग्जांपल दिया है? टॉल एंड ड्वार्फ, तो कैपिटल T एंड स्मॉल t. A pure line, सपोज आया 1 मार्क के लिए, तो प्योर लाइन मीन्स व्हाट? एन इंडिविजुअल विथ सिमिलर कैरेक्टर, होमोजाइगस, विच आर ऑलवेज कैसे रहेंगे? होमोजाइगस. इसका मतलब कैपिटल T, कैपिटल T, कैपिटल R, कैपिटल R, कैपिटल Y, कैपिटल Y, कैपिटल G, कैपिटल G. या उसके कॉन्ट्रास्ट क्या रहेंगे? स्मॉल t, स्मॉल t, स्मॉल r, स्मॉल r, स्मॉल y, स्मॉल y, स्मॉल g, स्मॉल g. तो ऐसे वैरायटी को हम क्या कहेंगे? दीज वैरायटीज आर कॉल्ड एज ए प्योर लाइन. नाउ नेक्स्ट वन, ये मोनोहाइब्रिड मैंने बताया. अ हेटेरोजाइगस फॉर वन ट्रेट is produced by, वो produce हो रहा है. Who will be produced? A heterozygous variety is produced. This is produced. लेकिन simple language में क्या समझेंगे? A cross between two pure parent. By considering how many pair of contrasting character? One ही, एक ही character को मैंने select किया है. The offspring produced by that is called as a monohybrid cross. And textbook definition,
a heterozygous for one trait is produced by, one मतलब एक ही कैरेक्टर लिया है, produced by cross between whom, between two pure parents, parents कैसे है pure, by considering how many pair, one pair और single pair of contrasting character. तो हम सिंपल लैंग्वेज में बोल सकते हैं क्या, ऑर्गेनिज्म produced by बताओ a pair of parent by considering क्या आएगा बताओ, one pair of contrasting character, by considering कितना लिया बताओ, one pair of, ये मेन है कौन सा कैरेक्टर, contrasting. Why contrasting character? Because एक tall और एक क्या आएगा, dwarf, तो ही हमें वो वैरायटी हाइब्रिड मिलेगी. So that monohybrid is over. तो मोनोहाइब्रिड वैरायटी से हमें कौन सा जनरेशन आता है, F1 जनरेशन. दैट रिफर्स द फर्स्ट फिलियल. आई थिंक ये अनस ने हमें बहुत पहले, मतलब जब लेक्चर चालू नहीं किया था, राइटिंग चला था, तभी उसने डाउट पूछा था. इट रिफर्स टू फर्स्ट फिलियल जनरेशन. सो व्हाट इज दैट फर्स्ट फिलियल जनरेशन, कैपिटल T, स्मॉल t, क्रॉस टू प्रोड्यूस कैपिटल T एंड स्मॉल t. So this is called as a first filial generation. Okay. Now next generation, that is called as the F2 generation. So what is F2 generation? The second generation which is produced by selfing of F1 generation. तो हमने अभी selfing नहीं किया है यहाँ पे मैंने next cross दिखाया था आपको, ये back cross दिखाया और ये कौन सा दिखाया, recessive back cross. अब मैं selfing करती हूँ, ये कैपिटल R एंड स्मॉल r है. ये F1 जनरेशन का एक ही प्लांट नहीं आएगा, एक ही, सपोज हमने बनाना लगाया, पी प्लांट लगाया, पी सीड लगाई, तो पी सीड गार्डन में लगाने के बाद एक ही सीड आती है क्या पूरे झाड को, बहुत सारे पॉड आते हैं ना. वाटाण्याच्या झाडाला खूप शेंगा येतात की नाही, आणि त्या शेंगामध्ये खूप सारे बिया असतात, मेनी सीड्स आर प्रेजेंट. सो आउट ऑफ मेनी सीड आई एम सिलेक्टिंग ओनली 2 सीड, मैं उसमें से 2 सीड को ले रही हूँ. तो यहीं पे मैं सेल्फिंग दिखाती हूँ आपको. सेल्फिंग का मीनिंग क्या आएगा, कैपिटल R स्मॉल r क्रॉस विथ किसके साथ होगा, कैपिटल R स्मॉल r. सेम स्पीसीज है, दे आर सेल्फ विथ ईच अदर. ये इसका क्या बनेगा, इन शॉर्ट जीनोटाइप. जी रिप्रेजेंट क्या होगा, जीनोटाइप. और ऊपर क्या लिखेंगे, फिनोटाइप. व्हाट इज द फिनोटाइप, ये रिप्रेजेंट क्या करेगा, राउंड. क्रॉस विथ यहाँ पे भी क्या आएगा, राउंड स्पीसीज. What will be the gametes of this? One is capital R, small r. Okay. यहाँ पे क्या gametes आएंगे, बोलो, capital and small. Now ये चेकर बोर्ड से ये लिखना कम पीरियड में, इन शॉर्ट टाइम स्पैन, हम इसे कैसे लिख सकते हैं. तो यहाँ पे हमने एक मेल पेरेंट ले लिया एंड अदर वन इज फीमेल पेरेंट. नाउ गैमेट्स क्या हुए, कैपिटल R स्मॉल r, कैपिटल R स्मॉल r. फ्यूजन ऑफ दिस, हाँ यस, कोशिश करो मुझे थोड़ा सा किसी से आंसर आए. तो ये R और ये R क्या आएगा यहाँ पे, दिस इज वन गैमेट फ्यूज विथ दिस गैमेट. सो व्हाट द जीनोटाइप ऑफ दिस, यस कैपिटल R. एंड व्हाट इज द फिनोटाइप फॉर दिस, वेरी गुड, हाँ फिनोटाइप इज राउंड, शाबाश. अब मुझे बताओ ये कैपिटल R क्रॉस विथ किसके साथ होगा, स्मॉल r. सो व्हाट इज द जीनोटाइप फॉर दिस, इसका जीनोटाइप क्या आएगा, वेरी गुड, कैपिटल R स्मॉल r, शाबाश. एंड फिनोटाइप भी इसका क्या आएगा, राउंड स्पीसीज, वेरी गुड. नाउ नेक्स्ट वी कैन सिलेक्ट. यहाँ पे अभी देखो मैडम, आप यहाँ पे स्मॉल r है तो आप पहले स्मॉल r क्यों नहीं लिखते हो, क्वेश्चन आना चाहिए ना हमारे माइंड में, क्यों ऐसा नहीं होता. दैट इज ऑलवेज डोमिनेंट कैरेक्टर फर्स्ट आता है. तो डोमिनेंट कैरेक्टर किससे रिप्रेजेंट किया है, कैपिटल R से ना. सो यहाँ पे कैपिटल R और क्या आएगा बताओ, नेक्स्ट मुझे आंसर चाहिए, यस कैपिटल R एंड स्मॉल r. व्हाट इज द फिनोटाइप फॉर दिस, हाँ इसका फिनोटाइप भी क्या आएगा, राउंड, शाबाश. आपको मेरा क्वेश्चन पैटर्न समझ में आया है. अब नाउ नेक्स्ट वन इज स्मॉल r एंड स्मॉल r. So what is genotype for this? That is RR, and which variety we get, wrinkled. Very nice. तो यहाँ पे देखो राउंड कितने वैरायटी मिले हमें, how many round variety we get here? Can any one of you? Total how many round variety we get here? Yes, 3.
Shabash. And how many wrinkle variety? 1. So this ratio is called as a round and wrinkle ratio is called as a 3:1. इस रेशियो को हम कहेंगे 3:1. बट दिस इज फिनोटाइपिक. इस रेशियो को हम क्या कहेंगे? फिनोटाइप. अब मुझे जीनोटाइप बताओ. जीनोटाइप यहाँ पे कितने टाइप के हैं? व्हाट आर दी जीनोटाइप इन दिस चार्ट? जीनोटाइप कितने वैरायटी के हैं? कितने टाइप्स के हैं? देखो, अगर आप देखेंगे डायग्राम, स्पेस नहीं है यहाँ पे. कैपिटल आर नहीं, मुझे टाइप ही चाहिए थे. ये आया कैपिटल आर एंड कैपिटल आर. ये एक 1 दिख रहा है मुझे. ओके. दूसरा कौन सा दिख रहा है? कैपिटल आर स्मॉल आर. ये है कैपिटल आर एंड स्मॉल आर. तो दूसरा मुझे क्या दिख रहा है? कैपिटल आर एंड स्मॉल आर. अब तीसरा बताओ, व्हाट इज द थर्ड जीनोटाइप? दैट इज 3 टाइप्स. तो थर्ड जीनोटाइप क्या है? थर्ड रिमेनिंग दैट इज स्मॉल आर, स्मॉल आर. अब मैं उसको रिप्रेजेंट करूंगी. कैपिटल आर मुझे कितने मिल रहे हैं? हाउ मेनी स्पीसीज आई गेट? 1. कैपिटल आर एंड स्मॉल आर हमें कितने मिल रहे हैं? हाउ मेनी स्पीसीज वी गेट? 2. ओके, शाबाश. एंड लास्ट वन स्मॉल आर, हाउ मेनी स्पीसीज वी गेट? 1. सो व्हाट द रेशियो इज हियर? हाँ, शाबाश. व्हाट द रेशियो इज? 1:2:1. दिस रेशियो इज कॉल्ड एज ए जीनोटाइपिक. इस रेशियो को नाम क्या दिया है? जीनोटाइपिक. कुछ क्लियर हुआ? नाउ दिस इज कॉल्ड एज अ जीनोटाइपिक रेशियो and this is called as a phenotypic ratio. So what is phenotypic ratio, all of you, from monohybrid? By monohybrid cross, what is the phenotypic ratio? Please, from monohybrid cross, shabash, the phenotypic ratio is 3:1. Okay. And what is the genotypic ratio? What is the genotypic ratio? Yes, 1:2:1. आपको क्लियर हुआ अभी? अब यही नोट्स के फॉर्म में एक्सप्लेन करते हैं. ये कहीं बुक में रेफरेंस नहीं है इसका. अब ये क्या पहले पढ़ाया है? टीचर भी कुछ स्मार्ट नहीं रहते, ऐसा कुछ नहीं. तो टीचर ने पहले से पढ़ाया रहता है. समझ में आया क्या? तो ये टॉपिक बहुत बार पढ़ाया है, इसलिए उनको मालूम है और वो इजी लैंग्वेज में बताने की कोशिश कर रहे हैं, बाकी कुछ नहीं. तो देखो, मोनोहाइब्रिड क्रॉस इज ओवर. फिर उसके बाद क्या आया बताओ? F1 जनरेशन. फिर उसके बाद नेक्स्ट कौन सा जनरेशन आएगा? F2. F2 जनरेशन क्या कहा है उन्होंने? द सेकेंड जनरेशन दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय सेल्फिंग ऑफ व्हाट जनरेशन? F1 जनरेशन. कुछ क्लियर हुआ? अभी मैंने ये जो जनरेशन प्रोड्यूस किया वो कौन सा जनरेशन हुआ? F2 जनरेशन. कैन ऑल ऑफ यू गेट द आइडिया? पहले कौन लिए थे हमने? पेरेंट्स. पेरेंट्स प्रोड्यूसेस व्हाट जनरेशन? F1 जनरेशन. F1 generation by crossing means first filial generation by crossing produces the generation next generation that is called as a second generation or that is called as a F2 generation. ये कौन सा generation आया? F2. Thank you to all of you. चलो हम आगे भी जाते हैं. अभी पुनेट स्क्वायर और चेकर बोर्ड. तो ये जो मैंने अभी डायग्राम, चलो अच्छा हुआ सब चीज एक साथ हो गई. ये जो बोर्ड ड्रॉ किया है, दिस इज डिस्कवर्ड बाय साइंटिस्ट पुनेट. So this is called as a Punnett square or this is called as a checkerboard. उसी को नाम क्या दिया है? Yes. Last 10 minutes. Yes, Abhinav. Okay. The Punnett square or checkerboard, it is a probability table that representing the different permutation. हमने ये जो process किए ना, that is permutation and combination of what process? Fertilization. Between whom? Between the gametes of different mating types. तो different mating types मतलब क्या? ये different type of organism. तो ये भी हम चेकर बोर्ड से लिख सकते हैं. ये भी हम चेकर बोर्ड से लिखेंगे. तो अभी 5-6 मिनट बाकी है और मुझे थोड़ा फास्ट लेना है. तो ये कैपिटल आर स्मॉल आर ये आया ना, और यहाँ पे क्या लिखेंगे? स्मॉल आर नहीं, कैपिटल आर यार. तो इसका चेकर बोर्ड में क्या आएगा? कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर स्मॉल आर. तो ये वैरायटी कौन सी होगी? दिस वैरायटी इज रेड, दिस वैरायटी इज आल्सो रेड, मतलब राउंड. यहाँ पे हमने स्पीसीज कौन सा लिया है? राउंड. तो ये भी राउंड आएगा और ये भी कौन सा स्पीसीज आएगा? राउंड. तो दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय बोर्ड. सो व्हाट हैपन? पुनेट स्क्वायर और चेकर बोर्ड, it is a probability table that representing the different permutations and combination of what process? Fertilization. Between whom? Gametes of different mating types.
तो मैं आज क्या करती हूँ, 2 मिनट के लिए अगर क्वेश्चन आंसर मिलेगा नहीं मिलेगा, फास्टली ये डेफिनेशन क्लियर करती हूँ, क्योंकि मैंने चेकर बोर्ड से आपको सब एक्सप्लेन किया है। होमोलोगस क्रोमोसोम मींस द क्रोमोसोम्स व्हिच आर मॉर्फोलॉजिकली, जेनेटिकली एंड स्ट्रक्चरली आइडेंटिकल, सेम रहेंगे, that are called as a homologous chromosome, which are present in which cell? Diploid cell. Back cross लिया, a cross between whom? F1 progeny with any of the क्या लिया? Parent. Either dominant parent ले लो या recessive parent ले लो। फिर अगर हमने recessive parent लिया है तो recessive parent से जो cross आएगा, that cross is called as a test cross. If it is a cross of F1 progeny with homozygous किससे हुआ? Recessive parent, then that is called as a test cross. तो phenotypic ratio हुआ, आपने मुझे आंसर किया 3:1. The ratio of the offspring produced in what generation? F1 generation. Of what cross? यहाँ पे एक्चुअली कौन सा क्रॉस आएगा? मोनोहाइब्रिड क्रॉस. In the monohybrid cross, by selecting one pair of contrasting character, the external character ratio is called as a phenotypic ratio. That is what? 3:1. अभी आपने मुझे जीनोटाइपिक रेशियो का भी आंसर दिया. The ratio of the offspring produced in what generation? F2 generation. तो यहाँ जरूरी नहीं 3:1 आएगा, यहाँ पे डायहाइब्रिड में ना 9:3:3:1 भी आता है. हमने एक ही क्रॉस लिया है ना, मोनोहाइब्रिड. अब यहाँ पे क्या है? F2 जनरेशन में यहाँ पे रेशियो क्या आएगा जीनोटाइपिक का? 1:2:1. एक सिंपल लैंग्वेज में बोलती हूँ, 1:2:1 को फिर से क्रॉस करेंगे तो इसका जो रेशियो आएगा दैट इज डाई हाइब्रिड, बट व्हाट रेशियो? जीनोटाइपिक. तो जीनोटाइपिक रेशियो मतलब क्या आएगा? द रेशियो ऑफ द ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस इन F2 जनरेशन, दैट इज रिप्रेजेंटिंग जेनेटिक कंस्टिट्यूशन. अब मोनोहाइब्रिड क्रॉस मतलब क्या लिया है? क्रॉस बिटवीन टू प्योर पेरेंट्स डिफरिंग ओनली हाउ मेनी पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर? one pair of contrasting character. That cross is called as a monohybrid. तो यहाँ पे parent क्या दिया है? Pure tall parent and pure dwarf parent. फिर उसके बाद क्या है? Dihybrid cross. A cross between parents differing in how many pair of contrasting character? 2. 2 का एग्जाम्पल यहाँ पे क्या लिया है? देखो, tall as well as round. And दूसरा क्या लिया? Dwarf as well as. Dwarf के साथ कौन सा लिया है? Wrinkle. So ये दो कैरेक्टर्स को कंसिडर करके जो क्रॉस आया, दैट क्रॉस इज डायहाइब्रिड क्रॉस. तो आई थिंक ये 10-20 टर्मिनोलॉजीज है. अभी आप इसको पूरे टर्मिनोलॉजी को पढ़ना है. कल से मैं टर्मिनोलॉजी पढ़ा रही हूँ. कहाँ तक है? देखो, जेनेटिक टर्मिनोलॉजी. तो पहला हुआ कैरेक्टर. कैरेक्टर से लेके काउंटिंग करने जाएंगे तो टाइम खत्म होगा, क्वेश्चन लिंक को टाइम नहीं मिलेगा. कैरेक्टर से लेके हम कहाँ तक जाएंगे? डायहाइब्रिड क्रॉस. आप टेक्स्ट बुक को फॉलो करो और कल फुल ये टर्मिनोलॉजी आपको याद करनी है. मैं अभी एक कैलकुलेटेड फॉर्म में क्वेश्चन आंसर सेशन लेती हूँ, देखो जमता है कि आपको. कोशिश करते हैं. हाँ, मुझे बताओ, कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, व्हाट दिस इज कॉल्ड एज ए, इसे मैं क्या कहूंगी? यस, टोटल 23. वेरी गुड, शाबाश. मुझे बताओ, व्हाट इज फॉर दिस कैपिटल आर, कैपिटल वाई, इसे क्या कहेंगे? अगर ये कोड वर्ड लिखा है तो क्या बोलोगे आप इसे? इस क्वेश्चन आंसर सेशन में. यस, देखिए, देयर आर 2-3 चांसेस ऑफ आंसर. हाँ, वन इज राउंड येलो. वेरी गुड. तो मैं इसे लिखूंगी ऊपर, सपोज राउंड एंड येलो. और आप क्या बोल सकते हैं इस राउंड एंड येलो को? मुझे एक्चुअली इसका आंसर चाहिए था, आपने ये आंसर दिया. अब मुझे इस टर्मिनोलॉजी का आंसर बताओ, इसे मैं क्या लिखूं? व्हाट आई रिप्रेजेंट दिस? जीनोटाइप. हाँ, दिस इज रिप्रेजेंटेड एज, क्या करेंगे हम? जीनोटाइप. अब इसका आपने जो ऊपर आंसर बताया है, हाँ यस, इसे क्या लिखूं? राउंड एंड येलो को. you have given me the answer round and yellow. Now what I have to write for this according to genetic terminology? शाबाश. इसे हम क्या लिखेंगे? phenotype. Very good. Now if I consider this as a parent, okay, so now how I can represent male parent? मेल पेरेंट करके मैं इसे कैसे रिप्रेजेंट करूं? इज दिस सिंबल फॉर मेल पेरेंट? ये मेल पेरेंट का सिंबल है.
व्हाट इज द सिंबल फॉर मेल पेरेंट? मेल पेरेंट का सिंबल क्या है? आउट ऑफ दिस टू विच? राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड, कौन सा है इसमें से? ये है या ये है? ओके, सो ये दिस पेरेंट इज कॉल्ड एज ए, वेरी नाइस, दिस पेरेंट इज कॉल्ड एज ए मेल पेरेंट. सपोज मैंने ये मेल पेरेंट सेलेक्ट किया, शाबाश. नाउ प्रोड्यूस द गैमेट्स. अब इसके गैमेट्स बनाओ. Try to produce the gametes. What are the gametes of this parent plant? Capital R, capital Y. Capital R. कोई कॉल आ रहा है, एक मिनट. What are gametes? Capital R, capital Y. शाबाश, ये हुआ gametes है. Now, what is capital R is? What this capital R is? Round. This R is represented as a round. But what this R means? हम इसे क्या कहें? दिस इज रिप्रेजेंटेड एज ए डोमिनेंट कैरेक्टर. मैं कैपिटल क्वेश्चन पूछ रही हूँ ना, तो हम इसे क्या कहेंगे? डोमिनेंट कैरेक्टर. कोई फॉर आपने जो आंसर किया दैट इज राउंड. अब कैपिटल वाई मीन्स क्या आएगा? डोमिनेंट कैरेक्टर फॉर किसके लिए? वाई. वाई मतलब व्हाट कलर? येलो कलर. चलो ठीक है. अब मुझे इसका कॉन्ट्रास्टिंग पैरेंट बताओ. व्हाट इज द कॉन्ट्रास्टिंग पैरेंट फॉर दिस? Okay.